And how are you feeling at home? I know that you want to come to school, but it is very important to be safe and healthy. So try to enjoy your classes and lessons at home. So, welcome to the new session, students of class 6th A. I am your English teacher, Mrs. Neelam Singh, and I will be taking your English classes. So, today I am starting with the new lesson of your book Honeysuckle, that is, Who Did Patrick's Homework. But before I start the lesson, children, tell me how many students like to do homework? Because homework is something which you have to do at home, and sometimes you feel bored in doing your homework. But some of the children like to do homework. Students, I want to say that whenever you read something, to check that you have understood the lesson, the teacher gives you homework. Homework is a very good thing to increase or enhance your knowledge. होमवर्क करते हैं बेटा तो नॉलेज भी बढ़ती है. तो होमवर्क कभी कभी हमको करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे दैट द लेसन इज़ क्लियर टू अस, कि लेसन हमें समझ में आ गया है. सो नाउ योर न्यू लेसन, द टॉपिक ऑफ द न्यू लेसन इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. सो पैट्रिक इज़ द main character of this story. He is a boy, and you will find that when you read the lesson, you will find how Patrick did his homework, who helped him, and in doing his homework. So, very interesting story. So, now I start your new lesson, that is, who did Patrick's homework. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Nintendo is a video game. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. टीचर पैट्रिक से कहते थे, होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा. And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus होता है a person who lacks education. एक ऐसा लड़का जिसमें शिक्षा की कमी हो, कभी कभी उसको ऐसा लगता था. बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. पर वो क्या करे, उसे लगता तो था कि उसके अंदर शिक्षा की कमी है, पर वो होमवर्क से बहुत नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया से खेल रही है, और उसने उससे वो गुड़िया छीन ली, पैट्रिक ने बिल्ली से. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल. उसने देखा कि बिल्ली जिससे खेल रही है, इट इज़ नॉट ए डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. एक छोटा सा आदमी है वो. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसने ऊनी कमीज पहनी हुई है, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज. उसने नीचे पैंट पहनी हुई है. अ टॉल हैट, ऊंची सी टोपी लगाई है. मच लाइक अ विच, जैसे जादूगर टोपी लगाते हैं, ऊपर को निकली हुई लंबी सी, ऐसी टोपी उसने लगाई हुई है. सेव मी, सेव मी. व्हेन पैट्रिक ग्रैब्ड द doll from the cat, actually it was not a doll, it was a man, so the man shouted, bachao, bachao, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that. So the little man said, don't give me to the cat and I will fulfill your promise. तुम मुझे बिल्ली को वापस मत करो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. Patrick could not believe how lucky he was. Patrick was very happy. Here was the answer to all of his problem. आज उसको अपनी सब समस्याओं का हल मिल गया. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरा सारा होमवर्क कर दिया,
That is 35 days. If you do a good enough job, if you will do my homework very nicely, I could even get A. मुझे स्कूल में A grade मिलेगा. He was very happy that now the little man will help him do his homework. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम मुरझा गया, ऐसे जैसे हम उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे हम किसी कागज़ को हाथ में निचोड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं. सो ही वॉज नॉट हैप्पी टू लिसन टू पैट्रिक. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट. उसने अपनी टांगें जोर जोर से मारी. एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपना मुक्का बनाया. एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड. ही शोड एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर एंड pursed his lips. उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया. Oh, I am cursed, but I will do it. अरे ये तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो गई, पर मैं कर लूँगा, पर मुझे करना ही होगा. And true to his word, as he was ready to fulfill his promise, that little elf means little man, began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. There was one thing which was a problem. Glitch means something which is glitch means problem. एक समस्या थी. The elf did not always know what to do. Elf ने कभी पढ़ाई नहीं था, उसे पता ही नहीं करना क्या है. And he needed help. उसे मदद की ज़रूरत थी. Help me, he said. And Patrick would have to help in whatever way. Patrick को उसकी मदद करनी पड़ी जैसे भी. I don't know this word, the elf said, squeaked while reading Patrick's homework. Patrick का होमवर्क पढ़ते समय उसने कहा, मुझे इसमें एक भी अक्षर समझ नहीं आ रहा. Get me a dictionary. मेरे लिए डिक्शनरी लाओ. No. What is even better? Look up the word. ये भी नहीं, उसमें शब्दों को देखो. And sound it out by each letter. और सब स्पेलिंग मुझे पढ़ पढ़ के लिखवाओ. When it came to maths, in this way he did his English homework with the help of dictionary. Patrick read the word meanings and he spelled the word meanings. उसने ना केवल शब्द ढूंढे डिक्शनरी में, उनके स्पेलिंग भी बोले, पर पैट्रिक ने बस केवल लिख दिए. नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ मैथ्स. पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक का भाग्य ने साथ नहीं दिया. व्हाट आर टाइम टेबल? द इल स्ट्रीक्ड. वो लिटिल आदमी चिल्लाया, अरे ये टाइम टेबल क्या होता है? टाइम्स टेबल क्या होते हैं? व्हाट हु एल्स? वी एल्स नेवर डिड नीड दैट. हमें तो कभी भी किसी टाइम्स टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन. हाँ, सिट डाउन बिसाइड मी. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. फिर एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, डिवीजन एंड फ्रैक्शन. सो एल्फ सेड, सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी and guide me in doing. नहीं, इतने भूख नहीं थे ना. And guide me in doing these sums. Elves know nothing of human history. Elves को तो हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं आता. To them it is a mystery. For them it is a secret. So the little elf, already a shouter, तो elf क्योंकि वो पहले ही बहुत चिल्ला रहा था, और ज़ोर से बोलने लगा. Go to the library. I need books. More and more books. जाओ लाइब्रेरी, बुक्स लाओ और ज़्यादा. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. एंड रीड द बुक्स फॉर मी ऑफ हिस्ट्री. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सो द रियलिटी वॉज दैट, सच्चाई ये थी, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग. हर दिन और हर समय, हर तरह से वो एल्फ जो था शिकायत ही करता रहता था. नैग मीन्स ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर. पैट्रिक ज़्यादा मेहनत कर रहा देन एवर, जितनी उसने पहले नहीं की. एंड वॉज इट ए ड्रैग. एंड इट वॉज समथिंग वेरी डल एंड अनइंटरेस्टिंग फॉर हिम. ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स. ही वॉज वेक अप टिल द नाइट्स. रातों को जागना पड़ रहा था उसे. हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. उसने वो कभी इतनी थकावट उसे महसूस नहीं हुई. वेरी मीन्स टायर्ड. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी. अब जब वह स्कूल जाता तो उसकी आंखें फूली हुई रहती ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप. एंड ब्लेरी, उसकी आंखें
आधी बंद आधी खुली सी रखती, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया, छुट्टी का आखिरी दिन. एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और एल्फ को जाना था. एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर. ऑल द होमवर्क वॉज ओवर. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, सीक्रेटली एंड क्वाइटली ही स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर. जैसे आखिरी होमवर्क हुआ, वो चुपचाप और गुप्त रूप से, विदाउट टेलिंग पैट्रिक, स्लिप्ड आउट, वेंट आउट ऑफ द बैक डोर. पिछले दरवाजे से निकल गया चुपचाप और सीक्रेटली, बिना किसी को बताए. पैट्रिक गॉट हिज एज. देन द होमवर्क वॉज गिवन इन द स्कूल. पैट्रिक गॉट द ग्रेड ए इन एवरी होमवर्क. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. इन प्रीवियस ईयर्स ही नेवर डिड होमवर्क, बट दिस टाइम बिकॉज ही गॉट ए, क्योंकि इस बार उसे सब में ए मिला, तो उसके दोस्त आश्चर्य में पड़ गए. अमेज मीन सरप्राइज्ड. हिज टीचर स्माइल्ड. टीचर खुश हुए. एंड वर फुल ऑफ प्रेज. और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड. वो तो आश्चर्य में ही पड़ गए कि पैट्रिक को आखिर हो क्या गया. ही वॉज नॉट दैट गुड इन डूइंग होमवर्क. ही वॉज नॉट द मॉडल किड. अब वो स्कूल के बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका था. क्लीन्ड हिज रूम. अब वो अपना कमरा साफ़ करता. डिड हिज कोर. अपने सारे काम करता. कोर मीन्स डिड हिज ऑल हिज वर्क. वॉज चेयरफुल. ही वॉज ऑलवेज हैप्पी and never rude to anyone. Like he had developed a whole new attitude. Now his whole lifestyle had changed. He became a very good boy. You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. अब अंत में तुमने देखा, पैट्रिक को हमेशा यही लगा और यही सोचा उसने कि सारा होमवर्क उस टाइनी आदमी ने किया है. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. कैरोल मूर, जो राइटर ऑफ द लेसन, सेज कि मैं पर तुमसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ. जस्ट बिटवीन यू एंड मी. ये बात तुम्हारे में और मेरे में रहनी चाहिए. इट वॉज नॉट द एल्फ. इट वॉज नॉट दैट स्मॉल मैन हु डिड द होमवर्क. इट वॉज पैट्रिक. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. वो सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही किया था. ही वॉज ओनली हेल्प्ड बाय द एल्फ मैन. एक्चुअली एल्फ मैन मेड पैट्रिक डू हिज होमवर्क in his own way. So this is the lesson, children. Who did Patrick? So now if I ask you who did Patrick's homework, it is very clear to you that the little man did not do his homework. He only helped Elf and he motivated Elf. The elf motivated Patrick to do his homework. So Patrick did his homework himself. So now the name of the lesson is who did Patrick's homework. So now you can say Patrick did his homework himself. So this is your lesson, who did Patrick's homework. Now let us see the exercise part of this lesson. There are certain fill in the blanks. Working with the language. A. Fill in the blanks in the sentence below with the words and the phrases. Phrases means group of words from the box. इसमें शब्द दिए हैं और शब्दों के बहुत कई शब्द एक साथ दिए हैं, उनको ब्लैंक में भरिए. सो नाउ आई एम डूइंग दिस फॉर यू. यू कैन डू इट फ्रॉम माई वीडियो. लिसन टू द वीडियो एंड डू योर एक्सरसाइज. सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स. CHORES फर्स्ट ब्लैंक में आएगा. कोर्स, काम. कुछ लोगों को घर के काम बहुत बोरिंग लगते हैं, पर मैं अपने घर में मदद करता हूँ. हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री. किसने हीरा चुराया, ये एक रहस्य है. मिस्ट्री. इन द सेकेंड ब्लैंक यू हैव टू राइट मिस्ट्री. MYSTERY. थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन दिस सेमेस्टर. SEMESTER. हमारे यहाँ एग्जीबिशन होगी. डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. ट्रू टू हिज वर्ड. अपने शब्दों को, अपने प्रॉमिस को रखने के लिए. ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. फोर्थ ब्लैंक में आएगा ट्रू टू हिज वर्ड. कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. लुक अप. फिफ्थ में आएगा लुक अप. क्या तुम इसमें डिक्शनरी से वर्ड ढूंढ सकते हो. लुक अप मीन्स टू सर्च. आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम. मैं घर से जल्दी चला. बट आई वॉज डैश
बट आई वॉज आउट ऑफ लक, पर मेरा भाग्य शायद ख़राब था। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, वहाँ ट्रैफिक लग गया। 7th ब्लैंक। शी सेज शी हैज़ गॉट a lot of books, but dash I think most of them are borrowed. कहती है कि सारी किताबें, इसके पास बहुत किताबें हैं, बट बिटवीन यू एंड मी, पर मेरे और तुम्हारे बीच में ये बात है कि उसने सारी बुक्स किसी से उधार में ली हैं, ज़्यादातर उसकी बुक्स किराए की हैं। सो लास्ट ब्लैंक इज़ बिटवीन यू एंड मी। सो फर्स्ट ब्लैंक इज़ कोर्स, सेकेंड इज़ मिस्ट्री, थर्ड इज़ सेमिस्टर, fourth is true to his word, look up, fifth, sixth, out of luck, seventh, between you and me. So these are your blanks which I have, this exercise of blanks I have done for you. Now I am sending you the question answers. So see the question answers and try to do in your copies. So I hope the lesson is clear to you students. If anything is not clear, you can ask me and share the message in the group. Thank you children. Thank you very much.